مصطفیٰ عامر کو دوست ارمغان نے کیوں اور کیسے قتل کیا؟ شریک ملزم شیراز کے دل دہلا دینے والے انکشافات۔ مصطفیٰ کے قتل کی وجہ لڑکی بنی۔ ملزم ارمغان اپنے گھر پر 3 گھنٹے تک مصطفیٰ پر لوہے کے راڈ سے تشدد کرتا رہا۔ نیم بے ہوشی کے بعد منہ پر ٹیپ لگا دی۔ مصطفیٰ کو اس کی گاڑی کی ڈگی میں ڈال دیا۔ شیراز اور ارمغان گاڑی لے کر کیماڑی سے ہب پہنچے۔ دراجی سے 2 کلومیٹر دور پہاڑی کے قریب گاڑی کی ڈگی کھولی تو مصطفیٰ عامر زندہ تھا۔ پھر ارمغان نے پیٹرول چھڑک کر لائٹر سے آگ لگائی۔ دونوں ملزم مصطفیٰ کو دور سے گاڑی میں جلتا دیکھتے رہے۔ واپسی میں 3 گھنٹے پیدل چلنے کے بعد سوزوکی والے کو 2000 روپے دے کر کراچی پہنچے۔ ملزم شیراز نے بتایا، پولیس چھاپے کے بعد ارمغان نے ویڈیو بنانے کے لیے گھر بھیجا۔ پولیس کے خوف سے ویڈیو نہ بنا سکا اور فرار ہو گیا۔ اب میں اپنے حساب سے کھیلوں گا۔ مقتول مصطفیٰ عامر کی آخری گفتگو ARY نیوز کو مل گئی۔ مصطفیٰ نے اپنے دوست سے آخری بار بات کی اور ارمغان کے گھر پہنچنے کا کہا۔ تم جم سے ارمغان کی طرف ہی آ جاؤ، اب میں اپنے حساب سے کھیلوں گا۔ ایسا ہے تو میں بھی اپنے طریقے سے اس کے ساتھ کھیلوں گا۔ DIG CIA مقدس حیدر نے بتایا، 6 تاریخ کو ارمغان نے مصطفیٰ کو قتل کیا۔ بلوچستان پولیس نے لاش ایدھی کے حوالے کی، جس نے لاوارث سمجھ کر دفنا دیا تھا۔ ڈیفنس سے ارمغان کو گرفتار کیا گیا۔ ارمغان سے مصطفیٰ کا موبائل فون برآمد ہونے پر دوسرے ملزم شیراز کو بھی گرفتار کیا، جس نے قتل اور لاش جلانے کی کہانی بتائی۔ آج لاش کا DNA کروایا جائے گا۔ ارمغان کا ریمانڈ مل جاتا تو مزید حقائق بھی معلوم ہوتے۔ بلوچستان کے ضلع ہرنائی میں وطن دشمنوں کا وار، 11 کارکن جاں بحق، 6 زخمی۔ دھماکہ کول مائن ایریا میں مزدوروں کی گاڑی کے قریب ہوا۔ مزدور بازار جا رہے تھے۔ 5 مزدوروں کا تعلق سوات اور 5 کا دیر سے تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم نے کہا، شہریوں کے جان و مال کو نقصان پہنچانے والے درندوں کو سخت قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے، ہم دشمنوں کے عزائم کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ واقعے میں ملوث دہشت گردوں کو جلد انجام تک پہنچایا جائے گا۔ پاکستان نے امریکہ اور بھارت کا مشترکہ بیان بے بنیاد قرار دے دیا۔ بھارت کو جدید ٹیکنالوجی کی منتقلی پر بھی شدید تحفظات کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا، بھارت امریکہ بیان میں سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کو پیش نظر نہیں رکھا گیا۔ بھارت کو اسلحے کی فراہمی خطے میں فوجی توازن متاثر کرے گی۔ بین الاقوامی شراکت داروں سے اپیل ہے وہ یک طرفہ موقف کی توثیق سے گریز کریں جو زمینی حقائق کے منافی ہے۔ بھارت کی ہتھیاروں کی دوڑ، امریکہ سے اربوں ڈالر کا معاہدہ، وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم مودی کی ملاقات۔ امریکہ کا بھارت کو F-35 طیارے اور اربوں ڈالر کے ہتھیار دینے کا اعلان۔ امریکہ ممبئی حملوں کا ایک مبینہ ملزم بھی نئی دہلی کے حوالے کرنے پر تیار۔ ٹرمپ مودی ملاقات سے پہلے وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاج کیا گیا۔ سکھوں اور کشمیریوں نے بھارت مظالم کے خلاف نعرے لگائے۔ مودی کو سکھوں پر ظلم کا ذمہ دار قرار دیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور اعلیٰ حکومتی عہدیداران کا SIFC گرین کارپوریٹ انیشیٹو کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسمارٹ ایگری فارم، گرین ایگری مالز، ایگری ریسرچ سہولت سینٹر کا افتتاح کیا۔ کسانوں کو مہنگی مشینری خریدنے کے بجائے کم کرائے پر دستیاب ہوگی۔ شرکاء کو جدید زرعی مشینری کا معائنہ کرایا گیا۔ جدید آبپاشی نظام کے لیے پنجاب بھر میں 25 گرین ایگری مال تیار۔ آرمی چیف اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے زرعی شعبے کی ترقی کے لیے GPI کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ شہباز شریف سے اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر محمد یحییٰ کی ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا، موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے کلائمیٹ فائنینسنگ اہم جذب ہے۔ امید ہے ترقی یافتہ ممالک اس سلسلے میں اپنے وعدے پورے کریں گے۔ ایک اور فائنل پاکستان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ نیوزی لینڈ حتمی مارکا جیت کر ٹرائی سیریز اپنے نام کر گیا۔ چیمپئنز ٹرافی سے پہلے کیویز نے پاکستان کی سرزمین پر سہ فریقی سیریز جیت لی۔ 243 رنز کا ہدف آسانی سے 28 گیند پہلے 5 وکٹ پر حاصل کر دیا۔ ڈیرل مچل کی شاندار 50، ٹام لیتھم بھی فارم میں آ گئے، 56 رنز بنانے میں کامیاب رہے۔ نسیم شاہ 2، شاہین، سلمان اور ابرار ایک وکٹ حاصل کر سکے۔ فائنل میں پہلے کھیلتے ہوئے گرین شرٹس کی بیٹنگ لائن فلاپ، بابر، فخر، سعود اور خوشدل ناکام رہے۔ رضوان 46، سلمان علی آغا 45 اور طیب طاہر 38 رنز بنا سکے۔
पूरी टीम आखिरी ओवर में 242 पर ढेर हुई। 4 विकेटें उड़ाने वाले उर्वेक प्लेयर ऑफ द मैच करार। ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर सलमान अली आगा सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी रहे। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए गए। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले काफी चीजों में बेहतरी की जरूरत है। तमाम खिलाड़ियों को अपनी कारकर्दगी में निखार लाना होगा। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान की मैच के बाद गुफ्तगू। कहा, इब्तिदा में विकेटें गिरने की वजह से दबाव आया। कीवी स्पिनर्स ने शानदार बॉलिंग की, ज्यादा रन नहीं बनाने दिए। कोशिश करेंगे मेगा इवेंट के आगाज से पहले अपनी गलतियों पर काबू पाएं। नायब कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, 30 से 40 रन कम बनाए। कुछ मजीद रन होते तो नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब का सरप्राइज। तकरीब में JF-17 थंडर F-16 शायकीन का लहू गरमाएंगे। तैयारों की नेशनल स्टेडियम पर रिहर्सल। इवेंट की इफ्तिताही तकरीब बुध को होगी। चैंपियंस ट्रॉफी की कर्टन रेजर तकरीब इतवार को लाहौर में शाही किले के दीवान आम में होगी। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाएंगे। तकरीब में क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन होगी। PCB और ICC के अहम ओहदेदारान भी शरीक होंगे। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी की इनामी रकम का ऐलान कर दिया। फातह टीम को $22,40,000 जबकि रनर अप को $11,20,000 मिलेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी एजाज है। दुआ है कौमी टीम कामयाबी हासिल करे। मुझे क्यों निकाला? PTI से निकाले गए शेर अफजल मरवत का कौमी असेंबली में साथियों से सवाल। हुकूमती अरकान मुस्कुरा दिए। PTI अरकान खामोश रहे। हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर शेर अफजल का इस्तकबाल किया। स्पीकर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप इन्हें मरवा न देना। असद कैसर कहते हैं, शेर अफजल मरवत की पार्टी के लिए खिदमात हैं, उनके मामले पर नजरसानी करनी चाहिए। गिले शिकवे हैं लेकिन क़यादत मुत्तहिद है। कौमी असेंबली में बैरिस्टर गौहर को बोलने की इजाज़त न मिलने पर PTI अरकान का शोर शराबा, ऐवान से वॉकआउट। कोरम की निशानदही पर इजलास मुलतवी कर दिया गया। महमूद खान अचकज़ई की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मौलाना की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात में अब्दुल गफूर हैदरी, कामरान मुर्तज़ा और दीगर रहनुमा शरीक थे। पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी सिम्स का गैर कानूनी इस्तेमाल मुल्की सलामती के लिए बड़ा खतरा है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल साइबर क्राइम वक़ारुद्दीन सैयद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क भर से 44 मुल्ज़मान पकड़े गए। 8,000 से ज़ायद प्री एक्टिवेटेड इंटरनेशनल सिम्स बरामद की गईं। ये सिम्स चाइल्ड पोर्नोग्राफी, मालियाती फ्रॉड और दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही हैं। सोशल मीडिया पर लोगों को हिरासत करने के वाक़यात भी सामने आ रहे हैं। क्रिमिनल्स अपनी शनाख्त छुपाने के लिए UK और दीगर मुल्कों की सिम्स इस्तेमाल करते हैं। बाहर से आने वाले अफराद भी सिम्स लाकर बेच रहे हैं जो गैर कानूनी है। दो रोज़ा इंटरनेशनल फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस आज से इस्लामाबाद में शुरू होगी। पहले रोज़ के सेशन की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक करेंगे। मुख्तलिफ मुल्कों के मंदूबीन इज़हार ख्याल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने आर्जी जज का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन से हलफ लिया। जस्टिस सरफराज डोगर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ उठाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जुनैद गफ्फार की हलफ बर्दारी। कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट सैयद मोहम्मद अतीक शाह ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने हलफ लिया। जस्टिस एजाज स्वाति ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट में नए जजों के इजाफे के साथ सीनियरिटी लिस्ट अपडेट कर दी गई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह पहले, जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरे नंबर पर। सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान का तीसरा, जस्टिस जमाल मंदुखेल का चौथा नंबर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पांचवें, जस्टिस आयशा मलिक छठे नंबर पर मौजूद हैं। जस्टिस अथर मिनल्लाह सातवें, जस्टिस हसन अजहर रिजवी 8वें नंबर पर हैं।
सुना है आपके खिलाफ रेफरेंस आ रहा है। सहाफी का सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह से सवाल, जवाब दिया जब आएगा तब देखी जाएगी। कुछ गलत नहीं किया तो रेफरेंस का डर क्यों होगा? अल्लाह मालिक है। मेरा किसी से कोई जाती अनाद या इख्तिलाफ नहीं। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं? तमाम जजों से मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय भी पीते हैं। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद, FBR से अहम इख्तियारात वापस, टैक्स पॉलिसी साजी और टैक्स वसूली को अलग अलग कर दिया गया। वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस कायम। टैक्स पॉलिसी ऑफिस वजीर खजाना और रेवेन्यू को रिपोर्ट करेगा। टैक्स पॉलिसी ऑफिस हुकूमती इस्लाहाती एजेंडा बनाने पर काम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर की जानिब से तोहफे में दी गई गाड़ी तोशाखाना में जमा करा दी। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तोहफे में गाड़ी दी थी। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके गुज़श्ता रोज़ वापस गए थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से सऊदी सफ़ीर और सऊदी नेवल फोर्स के कमांडर की मुलाकात, बरादराना ताल्लुकात और दो तरफ़ा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। कामरान टिसोरी ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों को सराहा, दिफाई और तजारती ताउन के मज़ीद फ़रोग़ के अज़्म का अदा किया। सऊदी सफ़ीर ने कहा पाकिस्तान से ताल्लुकात तारीख़ी और मजबूत बुनियाद पर कायम हैं, दोनों मुल्कों के दरमियान हर शोबे में ताउन बढ़ाएंगे। कराची में हैवी ट्रैफिक से मुतालिक दफ़ा 144 नाफिज, नोटिफिकेशन जारी। शहर में हैवी ट्रैफिक की नक़्ल हरकत मुनज़्ज़म की जाएगी। रात 10 से सुबह 6 के सिवा डंपर चलाने पर पाबंदी होगी। तामीराती सामान की तफसील के लिए मुकर्ररा रूट इख्तियार करना होगा। इत्तलाक 2 माह के लिए होगा। पानी, दवाएं, लिक्विड गैस की गाड़ियां पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। ट्रैफिक रोकने समेत अवामी जिंदगी मुतासिर करने वाला कोई इकदाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मसाइल को सियासी रंग देने से गुरेज करें। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार की ट्रांसपोर्टर्स के वफ़द से गुफ्तगू। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा भारी गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन और फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना ज़रूरी है। दीगर सूबों से आने वाली गाड़ियां सिंध में रजिस्टर कराएं। MKM पाकिस्तान ने डब्बर हादसात में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन की माली मदद का मुतालबा कर दिया। डिप्टी पार्लिमानी लीडर तहा अहमद खान का वज़ीर आला सिंध को खत लिखा, कराची में डंपर से शहरियों की अमवात सिंध हुकूमत की नाकामी का सबूत है। आफाक अहमद की तरह इश्तियाल फैलाने वालों को पकड़ना चाहिए। वज़ीर आला सिंध कहते हैं लोग धरना देते हैं तो मीडिया कवरेज के लिए पहुंच जाता है। धरना देने वाले खुद को सुपरस्टार समझ लेते हैं। वज़ीर आला ने कराची के पहले जदीद थाने का इफ्तिताह कर दिया। बोले सिंध भर में 33 पुलिस स्टेशन को जदीद बनाया जा रहा है। 8 कराची में होंगे। कोई भी शहरी पुलिस से खौफजदा ना हो। पुलिस को जदीद सहूलतें देने का मकसद अवाम की खिदमत करना है। में तलबा को क्यों फेल किया गया, रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का मुतालबा। बोले स्क्रूटनी के नाम पर 2 माह गुजार दिए लेकिन रिपोर्ट सामने नहीं लाई जा रही। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कराची के नौजवानों को मायूसी की जानिब धकेल रही है। हमारा मुतालबा है तालीम दुश्मनों को बेनकाब किया जाए। मलीर में टाउन इंतजामिया की जानिब से फूलों की नुमाइश, शहरियों की बड़ी तादाद देखने आई। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर मेहमान खुसूसी थे। आगे सिर्फ वो बढ़ता है जो हालात से लड़ सके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का स्पोर्ट्स गाला की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा सूबे के आवाम की भरपूर खिदमत करेंगे। ऑडियो लीक्स केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। वार्ता 6 फरवरी के दौरान बटल सेक्टर रावलाकोट में 4 भारतीय IEDs बरामद की गई। LOC पर भारतीय तकरीबी कार्रवाइयां बेनकाब हो गईं। 2016 के बाद LOC पर IEDs लगाने के 54 वाक़यात सामने आए। वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर वक़ार अहमद नूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चकोठी, रकचक्री, बटल और दीगर इलाकों में IEDs मिलने और फटने के वाक़यात हुए। भारत की निहत्ते शहरियों पर फायरिंग और तकरीबी सरगर्मियों की तारीख है। भारतीय फौज मक्कार चालें चलने की भरपूर कोशिश कर रही है
لیکن اسے پاک فوج کی جانب سے منہ کی کھانا پڑ رہی ہے۔